10th class. Today I am going to start with the question session of periodic table. I already promised you that I will come with the questions of this chapter. Questions, see, logic questions are there in board. Always the logic questions are coming from this chapter only. Theoretical is not there, but except size and all, otherwise mostly the logic or the reasoning questions are coming from this chapter. So I'll discuss the pattern of those questions which are going to come. Right, I have already discuss in that video in groups and periods. I have discussed how to identify the group and the period from the atomic number. I told you if the atomic number is 13, we will distribute the electrons in KLM 283. Correct? I have explained there. 283. So 3 shells are there. If 3 shells are there, belongs to third period. And outermost electron is 3. That means if it is 3, then we will add plus 10 to this to form 13. So group number is 13. I told you that if the elements are this side, then this plus 10 will form the group number. Outermost is 2, 3. So 3 plus 10, 13 group. 2, 4. See, it is 6. 2, 4. So 4 plus 10, 14 group. 2, 5. 7 का आप करोगे अगर distribute. 2, 5. So what happens? 5 plus 10, 15 group. And if it is this side, left side, we need not to add plus 10 in this. This I have already, this is very important question. Now next questions which I am going to discuss. The first question is arrange these elements in the order of decreasing size. Size, I already, now the first thing, you have to practice like this, very important. 5 times if you write like this, it is the best method to answer all the questions of the periodic table. If in the board in rough, if you write this and then finally after the exam you can cross this at the back of the page and there you can use this in all logic questions. It will be easier for you. So please इसको लिखना सीख लो. लेफ्ट टू राइट करके लिखोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपका. जैसे हा, हे, ली, बे, बा, स्नॉफ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, मगल, सिप्स, क्ला, का. ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री वीडियो में बताया था कि 1 से 20 एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए आप क्या यूज करोगे. हा, हेलीबेब, स्नॉफ, नीना, मगल, सिप्स, क्लाक का. सो उसमें मैंने आपको वर्टिकली लिखना सिखाया था, बट नाउ यू विल राइट लाइक दिस. टिल 20 एटॉमिक नंबर इज देयर इन योर सिलेबस, नॉट मोर देन दैट. सो नीड नॉट टू वरी, जस्ट try to write this. Once you write this, see the magical. Now they are asking in the order of decreasing size. We know that when we move from left to right, the size, yes student, size क्या हो जाएगा? Decrease होगा. बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन ढूंढ लो. ये देखो मैंने इस लाइन से क्वेश्चन बनाया है. अब आपको साइज को कम करते जाना है, तो जो लास्ट में होगा सबसे छोटा होगा. ठीक है ना. अब हम यहां से शुरू करेंगे. लिथियम है, यस, सो लिथियम सबसे बड़ा. यू हैव टू पुट ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन साइन. लिथियम, देन उसके बाद बेरिलियम यहां है, यस, बेरिलियम इज देयर. फिर ग्रेटर देन, और क्या है हमारे पास? बेरिलियम. बोरॉन इज नॉट देयर. कार्बन इज देयर. कार्बन थोड़ा छोटा, ये देखो सबसे बड़ा. फिर कार्बन थोड़ा छोटा, एंड देन उसके बाद आ रहा है आपका नाइट्रोजन. यस, हियर द नाइट्रोजन इज थोड़ा छोटा, एंड सबसे छोटा हो जाएगा आपका फ्लोरीन. सिंपल. सी, यहीं से आप देख करके कर लोगे. सबसे छोटा साइज. बस आप ये बड़े से छोटा जाते जा रहे हैं, आप बड़े से छोटा करते चले जाओ. डन. सी, कितना इजी है. अब देखो, अगर इंक्रीजिंग साइज की बात हो रही है, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर. अब ये कौन सी लाइन में? थर्ड पीरियड. सी, दिस इज द थर्ड पीरियड. सो इंक्रीजिंग साइज मीन्स हमें इधर से इधर आना है, तो सबसे छोटा पहले आएगा. तो सबसे छोटा इनमें से देखो क्लोरीन. क्लोरीन ये देखो सबसे छोटा. टुवर्ड्स दैट साइड, मुंह जिस साइड खुला होगा वो बड़ा साइज है. ठीक है. क्लोरीन सबसे छोटा. देन उसके बाद आ रहा है हमारा बैक आओ. फॉस्फोरस इज नॉट देयर. सल्फर इज देयर. सल्फर आ जाएगा. देन आपका थोड़ा बड़ा कौन सा आ रहा है? बोलो. एल्यूमिनियम आ जाएगा. एंड सबसे बड़ा आ जाएगा आपका सोडियम. See, this is increasing order.
कुछ है इसमें? नथिंग. एंड ये तो आपके खूब सारे एलिमेंट को अरेंज करने होंगे, या फिर वो आपको देंगे विच इज बिगर इन साइज, फ्लोरीन और क्लोरीन. विच इज बिगर स्टूडेंट? अब आपको देखना है फ्लोरीन क्लोरीन तो टॉप टू बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम जाते जाते क्या होगा टॉप टू बॉटम में? यस, साइज इंक्रीजेस. सो विच इज बिगर इन साइज? क्लोरीन. दैट्स इट. यस. Next is, suppose if I say boron and aluminium. Boron and aluminium, which is smaller? बस बोरॉन एल्यूमिनियम ढूंढो. ये देखो बोरॉन एल्यूमिनियम. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो बोरॉन आपका छोटा हो गया, स्मॉलर. कितना इजी है. विच इज मोर मेटालिक? वी नो दैट दिस साइड इट इज मोर मेटालिक. अगर आपसे कहा गया सोडियम एंड क्लोरीन, विच इज मोर मेटालिक? लेफ्ट साइड है तो सारे मेटल है, तो सोडियम इज मोर मेटालिक. विच इज नॉन मेटालिक? क्लोरीन इज नॉन मेटालिक. सिंपल. आ रहा है समझ? क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन. सपोज इफ आई से एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन, विच कैन फाइंड डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन? विच विल फाइंड डिफिकल्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन? बोलो. अब देखो एल्यूमिनियम 3 निकाल सकता है और फ्लोरीन का 1 नेगेटिव, इसे खुद एक चाहिए. किसको बहुत तकलीफ होगी एक इलेक्ट्रॉन अपना देने में? इसे, फ्लोरीन, बिकॉज इज ऑलरेडी इट इज इन नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल फाइंड यस मोर डिफिकल्टी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. एल्यूमिनियम लूज तो करेगा मगर धीरे धीरे करेगा, बट फ्लोरीन इट इज क्या होगा? इट विल नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज इट्स yes own electron. It is highly electronegative because it is non-metal, and electronegativity increases towards that means from left to right electronegativity increases, non-metallic character increases. So fluorine is highly electronegative, means it requires 1 electron to gain electron. Yes. अब अगर मैंने आपसे कहा aluminium and silicon, aluminium and silicon, which is non-metallic? बोलो. एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, नॉन मेटालिक कौन सा होगा? ऑब्वियसली सिलिकॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस है. कितना इजी है. आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक अगर होल्ड कर लोगे ना तो आप आराम से इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. आई एम टेलिंग यू विच इज मोर रिएक्टिव. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, अलोंग द पीरियड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. तो आपको जो भी दिया रहेगा, सपोज फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव. यस. एंड सपोज lithium and potassium, which is more reactive? Potassium is more reactive because down the group it is going. Down the group it is going. Yes. So along the period, down the group, the characteristics should be hold very, yes, very strongly. All the characteristics should be learned to you. I have already uploaded in my videos of periods and groups. Once you hold that, all the logic questions can be possible, and you have to, not able to, you have to practice to write your 20 elements in this form. Then आराम से आपका ये हो जाएगा. You can check it out from here. You can check it out from here. Suppose if I say sodium is which group in period, कुछ करने की जरूरत नहीं. यहाँ देख लो फर्स्ट ग्रुप है और थर्ड पीरियड है, लिख दो देख करके. क्या करना? इतना इजी है. अगर आपसे कहा फास्फोरस का ग्रुप और पीरियड बोलो, ग्रुप हो गया 15, आप ऑलरेडी यहाँ 15 करके लिखा हुआ है आपका. ग्रुप हो गया 15 एंड पीरियड हो गया थर्ड. हमें KLM वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं है. Yes student, very easy. Go through all these questions, this type of question. That is why I have taken the separate session for this, so that you can come to know which sort of questions are going to come. And in your book there are a lot of questions like this, and in text as well as in out text. Okay students, thank you so much student. Please like, share and subscribe. Thank you so much for your patience that you are sitting with me and listening to me. Thank you. Thank you. God bless you all.